Good morning, students. As we are discussing about the Adobe Animate CC in our previous videos and see the different types of tools which we used in Adobe Animate CC, how to use the frame, what is the keyframe, what is blank keyframe, and the timeline, use of timeline, how to use the playhead, and what is the frame rate, and all the other symbols and instances. So first of all, we are going to today discuss the topic of creating instances, how to create instances in Adobe Animate CC. So to create a symbol, so as you see in Adobe Animate CC, I have created this symbol of ball previously in our video. So when you play this ball or play this animation, this ball comes from top to bottom. Okay. So when this ball comes from top to bottom, it's create a illusion. ये एक animation create हो रहा है in our movie, in our animation. So to create an instance, तो ये ball क्या है? एक symbol है. एक symbol है. इस symbol का हम instance create करेंगे. तो instance create करने का मतलब ये है कि हम उस symbol के जो color हैं या कोई हम इफेक्ट देना चाहते हैं उस सिंबल में, कोई एक्शन असाइन करना चाहते हैं उस सिंबल में, वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंसेस. उसको जो हम क्रिएट करते हैं दैट इज क्रिएटिंग इंस्टेंसेस. सो एज यू सी व्हेन दिस बॉल कम्स फ्रॉम टॉप, देयर इज नो ब्लैक लाइन इन दिस बॉल. यहाँ पे कोई ब्लैक लाइन, ये जो बॉल में दिख रही है बॉटम पे ब्लैक लाइंस दिख रही है बॉल में, ये जब टॉप से बॉल चलती है तब ये इस बॉल में कोई भी ब्लैक लाइन नहीं होती है. बट जैसे ये बॉल ग्राउंड पे पहुंचती है, इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है, इसमें ब्लैक लाइंस क्रिएट हो जाती है. ओके, सो व्हेन यू सी दिस बॉल इज इन द सेंटर, जैसे ये बॉल ऊपर से आई और सेंटर में आई, इस बॉल में कोई भी ब्लैक लाइन नहीं है. लेकिन जैसे ये बॉल बॉटम पे आई, देन ब्लैक लाइंस come into the ball, okay, as given in your book. So this is the way by which you can create the instance. तो हमने क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया, बॉल की पोजीशन को टॉप से बॉटम पे लाया और उसमें एक इफेक्ट हमने असाइन किया दैट बॉल हैज ब्लैक लाइंस इन द इमेज. ओके, so to create an instance, select a layer in the timeline. So this is the layer, as you see here, layer 1, and click on the symbol name. So because I have created this symbol on the stage, so there is no name assigned on this symbol. So release the mouse at the location on the stage. You select this selection tool, select this ball. First you click on the selection tool, then select this ball, then now you drag it and place on the next position where you want to place the ball. Suppose you want to place the ball on this position, then you want to place the ball on that position. Okay, suppose you want to place this ball on that position, and when you place the ball on that position, release the mouse location on the stage where you want to place the instance. So you put this ball from bottom to this position. From bottom to this position you place the ball. To make any changes to the name, size and color effects or actions of a particular instance, select the instance and open the property inspector on the right side. So property inspector, this is the property,
and here I think here is the create object, expand, convert to symbol, convert it to symbol. Here you give the symbol name. Suppose you give here the name ball. Okay, ball. Then okay. Then here you see to symbol properties, edit symbol instance name. You give here the instance name. Suppose give the instance name red ball. Okay, then the color effect. So the color effect is, you give the color effect here, give tint, okay, or tint, that is the okay. You set here the settings of the color. Okay, in this way you can set the color effects. Okay, then you see the color of the ball changes here from pink to some. You can also change here the effect of the color. Okay, here you see the color of the ball changes. The color of the ball changes, different color of the ball changes. Different color of the ball changes here. So in this way you can change the property of the instances, and when you play this illusion animation, here you see the ball comes from this point to this point. Okay, I erase this with the help of eraser tool. Okay, so when you play this ball, here you see the ball comes from bottom to this position. So in this way you can set the instance. So हमने क्या किया, इस बॉल की पोजीशन को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे सेट कर दिया, और जैसे ही हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इंस्टेंस सेट कर दिया, देन वी मेक द इंस्टेंस ऑफ दिस बॉल. Again you can set the instance of this ball from any position on the stage and you can create animation in this type. So यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल की पोजीशन के अकॉर्डिंग इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है. हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग करके बॉल की पोजीशन को सेट कर दे रहे हैं स्टेज पे, और जिस कारण से क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं बॉल के. इंस्टेंसेस मीन्स कि बॉल के जो हम कलर चेंज कर रहे थे, बॉल की प्रॉपर्टी में हम चेंज कर रहे थे, उसके एक्शन में हम चेंज कर रहे थे. पहले एक्शन था केवल टॉप से बॉटम तक आने का, फिर एक्शन में हमने चेंज कर दिया और बॉटम से ये बॉल की पोजीशन हमने यहां पे कर दी. सो व्हेन यू प्ले दिस मूवी इन दिस वे, योर बॉल
comes from bottom to this position. बॉटम से इस पोजीशन पे हमारी बॉल मूव कर गई. So in this way you can create the instances and create animation with the symbols and objects you use in your animation. तो यहां पर तो एक सिंपल बॉल थी. You can also use any character or you can also use a bird. इसी तरह से हम बर्ड भी बना सकते हैं. बर्ड को फ्लाई करते हुए दिखा सकते हैं कि बर्ड फ्लाई कर रही है ओके स्काई में. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द टाइप्स ऑफ एनिमेशन. द टाइप्स ऑफ एनिमेशन. तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्रिएटिंग इंस्टेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ animations. Types of animations. In the types of animations, the first animation is frame by frame animation. That is frame by frame. Frame by frame. And the second one is the twinned animation. Twinned animation. Twinned animation. So the types of animations, first is the frame by frame animation and twinned animation. So what is animation? Animation क्या था? अभी जो हमने बॉल का एनिमेशन देखा कि बॉल क्या हो रही थी, बॉल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर रही थी. Okay, on the stage the ball sets its position from one place to another place. Okay, so this is the animation effect you see on this ball. Animation is the illusion of movement created when a series of still images. तो यहां पे क्या था, स्टिल इमेजेस थी और हम क्या कर रहे थे, हम एक सीरीज प्ले कर रहे थे जिसमें बॉल के कलर को हम चेंज कर रहे थे, उसकी पोजीशन को हम चेंज कर रहे थे इन दिस वे. सो ये क्या हो रहा था, एक हम इल्यूजन ऑफ मूवमेंट क्रिएट कर रहे थे व्हेन अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस. ये सारी स्टिल इमेजेस ही हैं. बॉल क्या है, बॉल की इमेजेस सारी स्टिल हैं, स्टिल इमेजेस ही हैं, लेकिन ये मूव हो रही हैं रैपिडली और सक्सेसिवली रैपिडली मूव हो रही हैं. तो ये क्या हो रहा है, इट इज लाइक अ मोशन पिक्चर. एक मोशन पिक्चर क्रिएट हो जा रही है विच इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्टैटिक पिक्चर्स. स्टैटिक पिक्चर्स से ही हम एक मोशन क्रिएट कर दे रहे हैं. सो इन एडोब एनिमेट सीसी इट प्रोवाइड सेवरल वेज टू क्रिएट एनिमेशन. बहुत सारे एनिमेशन के वेज गिवन हैं और स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं. So each method provides you with different possibilities of creating engaging animated content. तो इसके थ्रू हम different types के अपने animated content हम create कर सकते हैं. तो एनिमेशन सपोर्ट करता है पहला तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड दूसरा ट्विन्ड एनिमेशन. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ द स्टेज. जो स्टेज पे कंटेंट है, मींस ये जो हमारी बॉल है, सपोज ये हमने एग्जांपल यहाँ बॉल से दिया है, तो ये जो हमारी बॉल है ये हमारा कंटेंट है. सो कंटेंट ऑन द स्टेज इन एवरी फ्रेम. हर फ्रेम में, मींस यहां ऑल ऑफ यू सी दिस फ्रेम, हियर वी यूज द 7 फ्रेम. सो इन ईच फ्रेम द कंटेंट चेंजेस, यानी कि हर फ्रेम में क्या होगा, बॉल क्या होगी, बॉल के देखो यहां पे कलर कुछ और है. सेकंड फ्रेम में हमने बॉल के कलर को यहां से चेंज कर दिया. सपोज we change the color of the ball. Here you change the color of the ball. Okay, बॉल का कलर हमने चेंज कर दिया. फिर हमने क्या किया, सेकंड फ्रेम पे, थर्ड फ्रेम पे आए, यहां पे बॉल के कलर को हमने और चेंज कर दिया. We give this color
Okay, and then in the fourth frame we change the color to this. Okay, and in the fifth frame put this color. Okay, and in the sixth frame put this color. Okay, so in this way you can put different frames and set the properties of the object. So it is the best suited to complex animation in which an image changes in every frame instead of simply moving across the stage. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बॉल की जगह पे हम उसके इमेज को भी चेंज कर सकते हैं कि बॉल के बाद वो स्क्वायर हो जाए. ठीक है, सपोज जैसे सेकंड फ्रेम में हमने यहां पर इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, बड़ा कर दिया. थर्ड पोजीशन पे हमने इसके पोजीशन को और इतना बड़ा कर दिया. फोर्थ पोजीशन पे हमने यहां पर इसे स्क्वायर कर दिया. फोर्थ पोजीशन पे हमने क्या किया, एक स्क्वायर क्रिएट कर दिया. ठीक है, और फिर फिफ्थ फ्रेम पे हमने फिर यहां पर बॉल की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया. एंड द सिक्स्थ फ्रेम यू गेट द बॉल ऑन द original size. Okay, so when you play this movie, here you see your ball, the image of the ball changes to different sizes. Okay, you see here the ball has changes its images. यहाँ पे बॉल की इमेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है. बीच में रेक्टेंगल भी आ रहा है, फिर बॉल की इमेज चेंज हो जा रही है. ओके, सो इन द फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इट इज द बेस्ट सूटेड टू कॉम्प्लेक्स एनिमेशन इन विच एन इमेज चेंजेस इन एवरी फ्रेम एंड सिंपली मूविंग अक्रॉस द स्टेज. सो इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हैज अ लार्जर फाइल साइज. फाइल साइज क्या होती है, लार्जर होती है, एज इट स्टोर्स यूनिक ड्राइंग्स फॉर ईच फ्रेम. तो हर फ्रेम के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने 7 फ्रेम्स यूज किए, तो हर फ्रेम के लिए हमने अलग अलग डिजाइन्स चूज किए. तो इन दिस वे इन द फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन योर फाइल साइज बिकम सो लार्ज बिकॉज यू सेट द different types of images and different types of content of the stage in different positions. तो हम बहुत सारे इमेजेस यूज करते हैं, कंटेंट को चेंज करते हैं, हर फ्रेम में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं. इससे हमारी फाइल का साइज इंक्रीज हो जाता है और हम यूनिक एक तरीके से ड्राइंग क्रिएट करते हैं ईच फ्रेम के लिए. सो इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन all of you see we create different types of images in frame by frame animation. So in this way you can create the frame by frame animation. Next is the twinned animation. So in the twinned animation there are two types of twinning. तो twin means होता क्या है, twin means क्या होता है, twin means that is twin comes from the word in between. in between यानी कि किन्हीं दो
के बीच का जो एक एनिमेशन है, दो पोजीशंस के बीच का एक एनिमेशन, एक स्टार्टिंग पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। तो हमने सपोज जैसे यहाँ पे 7 फ्रेम्स लिए हैं, तो हमने यहाँ पे इन बिटवीन, तो इन बिटवीन फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू 10th फ्रेम, तो यहां पर हम जो यूज करते हैं ट्विन्ड में, वो हम चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो हमारा टाइम है दैट इज द फ्रेम्स पर सेकंड, तो यहां पे हम टाइम का यूज करेंगे और हमने टाइम सेट कर दिया। जैसे हम कार्टून मूवीज में देखते हैं कि जब हम डिफरेंट टाइम पे कैरेक्टर्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन कैरेक्टर्स का टाइम सेट कर देते हैं कि इतने टाइम पे ये कैरेक्टर आएगा, फिर इतने टाइम पे ये शेप चेंज होगा बॉल का, फिर इतने टाइम पे बॉल का ये शेप रहेगा, फिर आगे जैसे फ्रेम बढ़ेगा तो उसके बाद अलग शेप रहेगी हमारे बॉल की। तो इस टाइप से हम इन बिटवीन, तो ट्विन्ड मीन्स इन बिटवीन, थ्रू ट्विनिंग यू कैन गो फ्रॉम वन की फ्रेम, एक की फ्रेम से हम अनदर की फ्रेम पे जाएंगे और चेंजेस करेंगे अपने एनिमेशन में। इट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू चेंज द शेप और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या उसका शेप चेंज करते हैं एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे हम टाइम के इंटरवल के अकॉर्डिंग उसके साइज को, उसके शेप को चेंज करते हैं। एंड ट्विन्ड एनिमेशंस हैव स्मॉलर फाइल साइज। यहाँ पे हम हर फ्रेम में अलग अलग चेंजेस नहीं करते, हम टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल का साइज होता है, जो हमारी फाइल जो हमने सेव कर रखी है फाइल, उसका साइज यानी जो मूवी की फाइल है उसका साइज स्मॉल क्रिएट होता है इन कंपैरिजन टू फ्रेम बाय फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम में लार्ज साइज क्रिएट होता है और ट्विन्ड एनिमेशन में स्मॉल साइज क्रिएट होता है, बिकॉज ट्विन्ड एनिमेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइम। सो इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिंबल ऑफ योर ऑब्जेक्ट। जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यानी स्टेज पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यानी जो सिंबल दिख रहा है, उसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो ट्विन्ड एनिमेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं ट्विन्ड एनिमेशन? 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज द मोशन ट्विनिंग एंड सेकेंड इज द शेप ट्विनिंग। फर्स्ट इज द मोशन ट्विनिंग and second is the shape tuning. So all of you study about the motion tuning and the shape tuning, and in the next video we are going to discuss here the motion tuning and the shape tuning. Okay, so if you have any confusion regarding any topic in Adobe Animate CC, you can ask me on my number or in the classes, online classes. So thanks for watching the videos and have a nice day.